ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, 6ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂਦੇਵ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਚ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਇਸਲਾਮੀ ਜਗਤ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਹਜ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਕੁੰਭ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੁੰਭੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਚ ਮਾਘ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਕਮ ਥਿਤ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੇ। ਇਹ 10 ਪੁਰਬ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 10 ਪੁਰਬਾਂ ਤੇ ਉਹ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣਾ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੀਰਥ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਵਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਕੇ ਤੀਰਥ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੀ ਕਲਪਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਸਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਣਤਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ, ਜਗਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਏ, ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣੀ। ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਵਲੀ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਤੋ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਤੀਰਥ ਬਣੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਟਨਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੀਰਥ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸਲਾਮੀ ਜਗਤ ਦੇ ਚ, ਹਿੰਦੂ ਜਗਤ ਦੇ ਚ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਚ, ਬੌਧ ਜਗਤ ਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਥਾਨ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਗਿਆ ਦੇ ਚ ਬੁੱਧ ਜਯੰਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੁੱਧਿਸਟ ਹੋਣਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਤੀਰਥ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੇ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਸਥਾਨ ਭੇਦ, ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਓ, ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਅਸਰ ਹੈ, ਹਰ ਮੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਅਸਰ ਹੈ, ਹਰ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਲੋਨੀ 'ਚ 4-4 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਭਜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ।
बंगला साहब, तिल धरन नूं थां नहीं मिलती। लंबियां लंबियां लाइनां लगदियां मत्था टेकण नूं, जद कि कलोनी दे गुरुद्वारे मौजूद ने, जिथे जिथे लोकी रहिंदे ने 2-2 4-4 गुरुद्वारे मौजूद ने। सोहणे सोहणे जथे कीर्तन पे करते हैं, पाठ हो रहा है, लेकिन भजे आ रहे हैं। अमृत वेले तो ही रौनक लग जांदियां। सीसगंज साहब, बंगला साहब, तिल धरन की थां नहीं आती। इनू कहते हैं अस्थान भेद, जगह का असर। जिथे परम पुरख ने कोई बैठ के तप किया होवे, टिकाणा किया होवे, असर है। और उस स्थान ते धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज की पावन काया का खून डुले है, उस जगह का अपना असर। इस ढंग नाल ते तीरथ तो कोई इनकारी नहीं हो सकता। पर तीरथ ताई तीरथ बने, किसी ने नाम जपिया सी, कोई बंदगी वाला सी, उसकी कदम बोसी नाल बने, उहदे जप नाल बने। तो जे तीर्थां नूं भी जन्म नाम ही देंदा है, तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं फिर साडा तीरथ नाम ही है। तीरथ हमरा हर को नाम, हरि दा नाम ही साडा तीरथ है। तीरथ नाम न जाओ, तीरथ नाम है। तीरथ शब्द विचार, अंतर ज्ञान है। तीरथ की है गुर शब्द दी विचार। शब्द नूं अपने विचार विच ले आना, शब्द नूं अपनी समझ विच ले आना, शब्द नूं अपने चेते विच ले आना, और अनुभवी ज्ञान दा पैदा हो जाना। तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। गुर ज्ञान साचा थान, तीरथ 10 पुरब सदा दसाहरा। तीर्थां ते 10 पुरब ने, जिवें हुणे मैं अर्ज कीता, कुंभ दा इशनान, कुंभी दा इशनान, प्रयागराज दे माघ दे महीने माघी दा इशनान, चंद्र ग्रहण दा इशनान, सूरज ग्रहण दा इशनान कुरुक्षेत्र दे। इसे तरीके नाल केदारनाथ, बद्री नारायण की यात्रा, ये 10 तीर्थां दे इशनान नूं, 10 पुरबां दे मनाण नूं मनदे ने। 10 तरह दे दोख, 10 तरह दे पाप मिट जांदे ने। 10 पुरब सदा दसाहरा, गुरु नानक देव जी महाराज दे बोल ने। ये जो 10 पुरब मनाए जाते हैं और आख्या जाता है 10 नूं हर लेंदे ने, भाव 10 नूं मिटा देंदे ने। 10 पाप, 10 पाप, 4 पाप बाणी दे मनदे ने, 3 पाप मन दे मनदे ने, 3 पाप तन दे मनदे ने। मिथ्या बोलना, फिक्का बोलना, कौड़ा बोलना या निंदा है तो सच्चाई, लेकिन इस वास्ते बयान कर रहे अगले नूं चोट पहुंचे, अगले नूं तकलीफ होवे। सच बोल के भी चोट पहुंचाई जा सकती है, ये भी मैं अर्ज कर दिया। जैसे कोई एक मनुख दी एक अख नहीं काम करती, तो उसनूं कहा जा सकता मित्रा तेरी एक अख काम नहीं करती, या फिर कहा जा सकता तू काना है। सच बोल के भी चोट पहुंचाई जा सकती, और इसके कई ढंग ने। बाणी दे ये जो 4 दोख ने ते 3 दोख मन दे, बुरा सोचना, बुरा याद करना और बुरे फुरनियां दा अंदर हर वक्त चलना। 3 दोख शरीर दे, हत्थां दा चोरी कर लेना, हत्थां दा हिंसा कर लेना, हत्थां दा दुराचार कर लेना। 3 दोख तन दे, 3 दोख मन दे, 4 दोख बाणी दे मन के इंज कहंदे ने 10 पाप ने।
ये 10 पाप 10 पुरब मनाण नाल मिट जाते हैं। ऐसी पुरानी धारणा 10 पुरब सदा दसाहरा। ये 10 पुरब मनाण नाल बाणी दे दोख मिट जाते हैं, बाणी शुद्ध हो जाती है, जबान शुद्ध हो जाती है, मन शुद्ध हो जाता है, मन दे दोख मिट जाते हैं, तन पावन हो जाता है, तन दे पाप धुल जाते हैं। पर महाराज कहने ने गुरु ज्ञान साचा थान तीरथ 10 पुरब सदा दसाहरा। गुरु दा ज्ञान ते प्रभु दा नाम ये जपना ही 10 पुरब मनाना है, और यही 10 दोखां नूं नाश करता है। कोई जल दा मज्जन, जल दा इशनान बाणी दे पाप नहीं धोंदा। जल दा इशनान मन दे पाप भी नहीं धोंदा। जल दा इशनान तन दे पाप भी नहीं धोंदा। सफुर्ती दे सकता है, ताजगी दे सकता है, और ताज़ा शरीर ढंग नाल नाम जप सकता है। पर जे आखिए एक डुबकी लाई ते सारे पाप धुल गए, ऐसा दिखाई नहीं देता। शायद आपनों पता होवे पिछले दिने जब कुंभ लग्या हरिद्वार दे, मेरे ख्याल 3-4 महीने पहले, बड़े वड्डे पद्धर थे, तैयारियां सालां बधी हो रही सन। उत्थे साधुआं दे च लड़ाई हुई, करीबन 35 के करीब साधु मारे गए, बहुत सारे जख्मी हुए। झगड़ा किस गल ते, मैं पहले इशनान करना है तो मैं पहले करना, मेरे पाप पहले धुलन तेरे बाद दे। उत्थे साधुआं दियां टोलियां ने, बैरागी ने, सन्यासी ने, नांगे ने, अखाड़ियां विच लड़ाई हुई, और यह पहली दफा होया। कहंदे ने इस तो सैकड़े साल पहले भी किधरे बिखात ते शुरू हो जाता सी, तनाव ते पैदा हो जाता सी, पर खूनी लड़ाई पहली दफा हुई। गए सन पाप धोन, शरीर दा पाप हिंसा, बाणी दा पाप मिथ्या बोलना, कौड़ा बोलना, तो खूब कौड़ा भी बोलते रहे, मिथ्या भी बोलते रहे, हिंसा भी कर देती। 35 बंदे मारे गए, सैकड़े जख्मी हुए। बनारस बनाया सी नाम जपण लई, और शिव जी कहते सन सारी दुनिया इत्थों दे सन्यासी मशहूर होणगे, इत्थों दे संत मशहूर होणगे, इत्थों दा निकलिया हुआ संत सारी दुनिया च पूजिया जाएगा। समा ऐसा आया, अज बनारस दा संत मशहूर नहीं, ठग मशहूर है। ये हर के संत ना आखिए, बनारस के ठग। समा वक्त के। बस इतनी ही मैं सच्चाई बयान कर सकदा। मक्के दे बदुआं दियां कहानियां ते बहुत पुरानियां। जल दे इशनान करने नाल ताजगी मिल सकती है, सफुर्ती मिल सकती है। हाँ, किसी जल की तासीर बड़ी महान हो सकती है, शरीर के रोगों की निवृत्ति कर सकता है। जैसे कोई मनुख नाम जपे किसी सरोवर के कंढे ते बैठ के, ओदियां जिहड़ियां लहरां बननगियां, वो पानी नूं छूणगियां, सहजे सहजे पानी की तासीर नूं बदलणगियां। बड़े पुराने जमाने तो यह कहावत चली आ रही है कि प्यार नाल, श्रद्धा नाल पानी का गिलास किसी नूं पेश करिए, उस पानी का स्वाद कुछ होर होंदा है। नफरत नाल, घृणा नाल, क्रोध नाल पेश करिए, उस पानी का स्वाद कुछ होर हो जाता है। मनुख के ख्यालों नाल, मनुख दियां तरंगां नाल पानी भी प्रभावित होंदे ने। सिर्फ पानी ही प्रभावित नहीं होंदा, रेत के जर्रे भी प्रभावित होंदे ने। इस वास्ते परम पुरख के कदमां ने जिस रेत नूं छोया है,
उसनूं चरण धूड़ कहते हैं और मस्तक ते लाण नाल बड़ी महानता मनी गई। गुरु ग्रंथ साहिब विच इसकी बड़ी उपमा है। इस गल तो ते इनकारी नहीं, पर खेड़ ते फिर भी नाम दी आएगी। नाम ही पानी की तासीर बदलेगा, नाम ही मिट्टी की तासीर बदलेगा, नाम ही बाहर के वातावरण को पावन करेगा। तो तीरथ हमरा हर को नाम, तीरथ नावण जाओ तीरथ नाम है। तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। गुर ज्ञान साचा थान तीरथ, दस पूर्व सदा दसारा। और नाम हर का सदा जाचों देह प्रभ धरणी धरा। हे संसार नू धारण करने वाले, हे धरती नू धारण करने वाले, हे प्रभु अपना नाम दे। यही तीरथ है, यही पापां नू नाश करता है, यही आनंद देंदा है, यही सुख देंदा है। इस पौड़ी च भी पातशाह कहते ने तीरथ नावा जे तिस भावा। जे मैं परमात्मा नू भा जावां तां ही तीरथ नावा ना। बई तीरथ दा नाना ते तां जो उसनू भा जाइए। विण भाणे कह नाए करीश। जे उसनू पाईए ही ना, उसनू चंगे ही ना लगिए। और उसनू कौन भांदे ने, पिछलियां पौड़ियां च जिक्र आ गई है। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। जो उसदे भाणे नू मनदे ने परमात्मा नू वो भा जांदे ने। जो उसकी रजा नू मनदे ने, जो उसदे भाणे नू मन लैंदे ने, परमात्मा नू वो भा जांदे ने। उसे दा ही विस्तार है। जे मैं उसनू पाया ही नहीं, ते जे मैं उसकी रजा दे जीविया ही नहीं, ते की इशनान कीता? मैं कुछ नहीं इशनान कीता। साहब अगे चल के कहंदे ने, पंक्तियां पढ़नियां। जेती श्रेष्ठ उपाई वेखा विण कर्म आकै मिले लई। जितनी सृष्टि है परिपूर्ण परमात्मा तो बनाई है, मैं वेखदा कि बिना कर्मा तो क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। तो कर्म नू दो पासे लै गए सिख जगत दे विद्वान। कर्म नू लै गए बख्शिश वाले पासे। ओ जो कहते ने एक कर्म शब्द फारसी दा है, ते फारसी विच बख्शिश लई लफ्ज़ है कर्म। फलाने ते खुदा दा कर्म हो गया। कर्म दे अर्थ बख्शिश। पर कुछ महान विद्वान इसनू ले गए ने, इस संस्कृत दा लफ्ज़ है इत्थे कर्म दे मतलब ने कम। कर्म कृत करना। बिना कुछ कीते की प्राप्त हो सकता है? कुछ भी नहीं। बिना कुछ कीते की प्राप्त हो सकता है? कुछ भी नहीं। कहते ने मनुख दे नाल ही कर्म की जिम्मेवारी चल पैंदी है, पशुओं के नाल नहीं है, पंछियों के नाल नहीं है। जिथे सुचेत होया मनुख, सावधान होया, ज्ञान पैदा होया, कर्म की जिम्मेवारी नाल चल पई। कर्म की जिम्मेवारी विच पशु जगत नहीं आउंदा। कर्म की जिम्मेवारी विच पंछी नहीं आउंदे, कीड़े मकोड़े नहीं आउंदे। प्रकृति की उंगल पकड़ के वो चल रहे हैं। उन्होंने कोई सुतंत्रता भी नहीं, बजी हुई जिंदगी है। प्रकृति उन्होंने जिस तरह जीवन का हक देना चाहती है उसे ढंग नाल जीवनगे, उस तो ज्यादा नहीं जी सकते। भाव भुखी मर जाएगी गौ, मांस नहीं खाएगी। भुखा मर जाएगा शेर, घास नहीं खाएगा। प्रकृति ने उन्होंने ढंग बना रखे। अपने खुराक बारे भी सुतंत्रता दे नाल चोण नहीं कर सकता शेर। बुढ़े शेर कई दफा शिकार नहीं कर सकते, पर भुख तो तड़प के मर सकते हैं, घास नहीं खाते। उन्होंने खुराक ही नहीं है। और इसी तरीके नाल भुखी मरेगी गौ, मांस नहीं खाएगी। ये उसकी खुराक ही नहीं है। खान पान प्रति प्रकृति ने उन्होंने बन के रखे हुआ है। जिंदगी उन्होंने बजी हुई है, सुतंत्र नहीं ने। इस वास्ते हजारां साल पहले जिथे पशु सन, अज भी उत्थे ने।
पर मनुख की दुनिया च हर 1000 1500 साल बाद युग बदल जाता है, तर्जे जिंदगी बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। मैं उस दिन अर्ज की सी त्रेता द्वापर ते कल युग ये सारे 5000 साल दे हो जाते हैं। गालबन श्री राम नूं होया 5000 साल होए ने, श्री कृष्ण नूं होया 3500 साल, ते गुरु नानक 500 सवा 500 साल। 3 युगां दे अवतारी पुरुष इन्हां 5000 सालां च हो गए। एक युग लखां सालां वर्गा है, इस तरह का तो कोई सबूत नहीं मिलता। 1000 1.5 2000 साल बाद युग बदल जाता है। तो युग का बदलना की है, मनुख की सोचनी बदल जाती, मनुख का खान पान पैरान बदल जाता है, मनुख के कुछ समाजिक रिश्ते बदल जाते हैं, मनुख की कुछ धार्मिक दुनिया बदल जाती है, मनुख का कुछ रहन सहन बदल जाता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज का एक पावन शब्द भी है राम कली राग दे, सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिनियर तपतर है। ओही धरती है, ओही तारे ने, ओही दिनियर सूरज है, ओही चंद्रमा है जो 1000 साल पहले से। सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिनियर तपतर है। सा धरती, ये धरती भी हुई है जो 1000 साल पहले सी। सा धरती सा पवन झुलारे, जुग जी खेले थाव कैसे। पवन कोई बदल नहीं गई, वही है। सागर कोई बदल नहीं गए, वही ने। धरती कोई बदल नहीं गई, वही है। सूरज कोई बदल नहीं गया, वही है। सब कुछ थे वही है। तो फिर किस तरह कह रहे हैं युग बदलता है? युग बदलता है मनुख दे नाल, सूरज दे नाल युग नहीं बदलता। सूरज दे नाल रुत बदलती है, सूरज दे नाल दिन बदलता है, सूरज दे नाल महीने बदलते हैं, सूरज दे नाल युग नहीं बदलता है। मनुख दे नाल युग बदलता है। जैसे सारियां रुतां सूरज करके ने, सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के केते वेश। एक सूरज करके कई रुतां बदलदियां ने, एक मनुख करके बार बार युग बदलते हैं, बार बार युग बदलते हैं। खुलासा तो किसी वक्त फिर करांगे, पर मैं अर्ज करा 3 युग कम से कम 5000 साल दे विच हो जाते हैं। क्योंकि सतयुग दे कोई माकोल कोई प्रबल अवतार मनिया ही नहीं गया, 52 अवतार मनते ने, 52। त्रेते तो अवतारां की परंपरा चली, और इस तरह द्वापर ते कल युग। मुख्तसर में अर्ज करा 1000 1500 साल बाद मनुख की सोचनी बदल जाती है, खान पान पहरान बदल जाता है, तर्जे जिंदगी बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। मनुख के विचार दे बदलदियां, सोचने दे बदलदियां, रहन सहन दे बदलदियां सारे का सारा युग बदल जाता है, दुनिया बदल जाती है। तो महाराज इत्थे कह रहे ने, मैं देखदा जगत विच बिना कीतियां की कुछ प्राप्त होता है? कुछ भी नहीं। वेखा विण कर्मा कह मिले लई। तो जे इसनूं हुण आधार बना के मैं विचार आप जी के सामने रखा, तो विद्वान ऐसा कहते हैं कर्म 2 तरह के ने, क्योंकि शरीर है मनुख कोल, मन है मनुख कोल। जो शरीर के तल ते प्रगट हो गए उन्होंने कहते हैं कर्मकृत, ते जो मन के तल ते चले उसनूं कहते हैं कर्म विचार। 2 तरह के कर्म, ध्यान नाल सरवण करना। कर्मकृत, कर्म विचार। जो मेरे तन के तल ते प्रगट होवे, मेरे शरीर तो प्रगट होवे, मेरे हत्थां तो प्रगट होवे, मेरी जबान तो प्रगट होवे, वाचक कर्म बोलना, कर्मकृत। और जो मेरे मन में चलता रहता है, सोचनी चलती है, यादां चलदियां ने, फुरने चलते हैं, कर्म विचार। प्रथम श्रेणी विच उस मनुख नूं धार्मिक दुनिया मनती है, भगत संत ब्रह्म ज्ञानी,
जिस दी कृत भी महान, जिस दी विचार भी महान। उस शरीर के तल ते जो कृत करेगा, उस कृत तो जगत ਨੂੰ कुछ लाभ तो हो सकता है, चोट नहीं पहुंचेगी। और उसके विचारां ਦੇ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। कर्म कृत बड़ी महान, कर्म विचार बड़े महान। ये बाहरों भी महान, अंदरों भी महान। हजार जां फिदाए आं के जबानश दिलश यकेस्त। अंदरों बाहरों जो एक है, हाफिज कहते ने हजारां जाना उस बंदे तो कुर्बान कीतियां जा सकदियां, सदके कीतियां जा सकदियां, वो इतना महान है। एक दूसरा तबका कर्म विचार बड़े महान ने, सोचनी बड़ी महान है, यादां ठीक ने, नीयत ठीक है। कदी कदी कृत गलत हो जाती है, कर्म कृत गलत हो जाती है। कदी कदी कृत गलत हो जाए, समाज नूं प्रवान नहीं, समाज कबूल नहीं करता। कृत गलत हो जाए, कानून भी कबूल नहीं करता। कानून सजा देंदा है जिहदी कृत गलत हो जाए। तो कृत गलत की, जिस कृत नाल किसी नूं चोट पहुंच जाए, किसी तरीके की भी चोट पहुंच जाए, वो कृत गलत है। तो समाज की निगाह विच वो मनुख गिरदा है जिहदी कृत गलत हो जाए। कानून की नज़रां विच वो मनुख दोषी है, अपराधी है, जिहदी कृत गलत हो जाए। भावें विचार ठीक होवन, भावें सोचनी ठीक होवे, भावें नीयत ठीक होवे, पर मैं अर्ज करा ये दूजी श्रेणी च आ जाते ने। कर्म विचार ते बड़े निर्मल ने, सोचनी बड़ी पवित्र है, भावना बड़ी निर्मल है, नीयत बड़ी साफ है, कृत कदी कदी गलत हो जाती है। जैसे मैं एक उदाहरण दिया, संध्या का वक्त दशरथ श्री राम दे पिता शिकार ते निकले ने। ऐसा महसूस होया जैसे सरोवर विच एक हिरन पानी पी रहा है। खिंच के बाण मारिया, मनुख दे चीखण की आवाज आई, भजे हुए गए, देखिया कि ते शरवण कुमार है, ये बंदा है, मेरे को ते बंदा मारिया गया। रोंदे ने उथे दशरथ ज़ारो ज़ार, हे प्रभु एक ही हो गया। और ये रोना कम से कम 12-13 सफियां ते तुलसी ने लिखे है। रोई जाते हैं, तड़पते पे ने। तीर लगे शरवण नूं, तड़प तड़प के अपने प्राण दे रहा है, पर उस तो भी कई गुणा ज्यादा तड़प रहा है। दशरथ ऐ की हो गया मैथों। मारन का कोई इरादा नहीं सी, सोच के नहीं आए सन, विचारों के शरवण नूं मारना नहीं सी, हो गई, कृत गलत हो गई, करनी गलत हो गई, कृत गलत हो गई। विचार ठीक ने, नीयत ठीक है, भावना ठीक है। एक दूसरा उदाहरण, 12 मूला की गल 6वें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज घोड़े ते असवार आ रहे ने। माई ने लगाम पकड़ ली घोड़े की, एक बिरध माता ने, ते मुंहों जो कुछ बोल दी। कवि संतोख सिंह जी ने लंबी चौड़ी वार्ता लिखी है। माई कही जाती है, तुसी पतित मैं पतित पावन, तुसी पतित मैं पतित पावन, तुसी पतित मैं पतित पावन। इसका मतलब तुसी पापी हो तो मैं पाप थोड़े पाप धोने वाली हाँ। कही जाती है, कही जाती है, बोली जाती है। तुसी पतित मैं पतित पावन, रोई भी जाती है, आखी भी जाती है, हाथ भी जोड़े, लगाम भी पकड़ी हुई है। सेवादार ने हथों लगाम छुड़ा के धक्का दे के एक पासे किया। आख्या मूर्ख की आख रही है, तेन इतनी भी समझ नहीं, की आख रही है। एकदम 6वें पातशाह घोड़े तो उतरे, एकदम
उतरदियां सार माता नूं गलवकड़ी च ले लिया। आख्या मां तू ठीक कह रही है, तू ठीक कह रही है, तू जो कुछ भी कह रही है ठीक कह रही है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की पंक्ति, जे बाहरों भुल चुक बोल दे भी खरे हर माने। कृत गलत हो गई है, भावना गलत नहीं है, नीयत गलत नहीं है, सोचनी गलत नहीं है, कर्मकृत गलत हो गया। पर कर्मकृत गलत हो गया तो समाज नूं कबूल नहीं होता, समाज नूं नहीं चंगा लगता, यदि कृत गलत हो गई है। तो कानून नूं ते बिल्कुल प्रवान नहीं है। कानून ते अगर कृत बहुत माड़ी होवे ते अगले नूं बहुत चोट पहुंची होवे तो सजा भी है। दशरथ राजा सी, ठीक है, वो खुद ही तड़प लिया, वो अपने आप को आप ही सजा देंदा पिया। राजा सी खुद, वरना किधरे अज दा निजाम आउंदा तो फिर ते कातल सी, कतल दे दोष दे शायद पकड़िया जांदा। पर मैं अर्ज करा, कृत गलत हो गई है दशरथ दे कोलों, समाज नूं कबूल नहीं है, ये कानून नूं भी कबूल नहीं हो सकती, परमात्मा नूं कबूल है, परमात्मा नूं प्रवान है। ठीक है, कृत गलत हो गई है, भावना गलत नहीं है, कृत गलत हो गई है, नीयत गलत नहीं है, कृत गलत हो गई है, विचार गलत नहीं है। ऐसा कदी कदाई होता है, किसी किसी नाल होता है। बड़े तो बड़े पवित्र लोगों कोल भी ऐसी गल हुई है, कृत गलत हो गई है। और जे तुसी सुन सकते हो तो मैनू कहने की इजाजत होवे तो बड़े बड़े अवतारां कोल भी कृत गलत हुई है, हो गई है। नीयत नहीं सी उन्हां दी, भावना नहीं सी, सोचनी नहीं सी, हो गई। करने की भावना नहीं सी, ऐसा हो जाए उन्हां दी भावना नहीं सी, कतई सोचिया भी नहीं सी, हो गया। लेकिन ईश्वर के दरबार दे च ये दोषी नहीं ने, ये संत, ये भगत दोषी नहीं ने। दशरथ भी अपने जमाने का एक संत पुरुष है, साधना करने वाला सी, तपस्या करने वाला सी, ते वक़्त दे अवतारी पुरुष का पिता है, धार्मिक राजा है। कृत गलत हो गई है, और थोड़ी बहुत नहीं गलत हुई, बहुत वड्डी गलत हुई है, बंदा मर गया है। पर मैं अर्ज करा, ईश्वर की दृष्टि ये गुनाह नहीं है, पाप नहीं है। मैं एक दफा फिर दोहरावा, प्रथम श्रेणी विच कृत भी ठीक है, विचार भी ठीक ने। कर्म कृत बड़ी पावन है, कर्म विचार बड़े शुद्ध ने। इस समाज नूं भी कबूल है, परमात्मा नूं भी कबूल है, संसार नूं भी कबूल है, निरंकार नूं भी कबूल है। दूसरा, नीयत ठीक है, भावना ठीक है, विचार ठीक ने, सोचनी ठीक है। कदी कदी कृत गलत हो जाती है, कदी कदी। समाज नूं ते ये मनुख कबूल नहीं हो सकता, पर परमात्मा नूं कबूल है। परमात्मा की दृष्टि च काबले माफ। जे बाहरों भुल चुक बोल दे भी खरे हर बाणे। एक तीसरा, कृत बिल्कुल ठीक है, जो बोलता है, जो करता है बिल्कुल ठीक है, समाज कबूल करता है, कानून भी कबूल करता है, ठीक, कृत ठीक है। नीयत ठीक नहीं है, भावना ठीक नहीं है, सोचनी ठीक नहीं है, विचार ठीक नहीं है, कृत ठीक है। इस समाज नूं कबूल हो सकता है, गुरु नूं कबूल नहीं है। ये कानून की निगाह ठीक हो सकता है, परमात्मा की निगाह दी ठीक नहीं है। गुरु अर्जन देव जी इसनूं कहंदे ने पखंड। कृत ठीक है, भावना ठीक नहीं है, कृत ठीक है, नीयत ठीक नहीं है। कर्म कृत बड़ी महान है,
कर्म विचार, कर्म नीयत बड़ी नीच है। जितनी बार उच्ची कृत प्रकट कर रहा है उतनी सोचनी नीवी है, उतने विचार नीवे ने। जितना बार पवित्र कर्म कर रहा है उतनी नीयत गंदी है। इसनू महाराज इंज कहते ने, कर्म धर्म पाखंड जो दिसे, जो दिखाई दे रहा है। पाखंड, पाखंड का मतलब खंड खंड। बाहर दे तल ते कृत बड़ी महान दिखाई दे रही है, बड़ी महान। दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है, सत्संग दे च बैठा है, बाणी पढ़ रहा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जा रहा है, परोपकार कर रहा है, कृत बड़ी महान। लोकी कहते हैं महान। नीयत बैठी है, सोचनी बैठी है, विचार चंगे नहीं ने। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं पखंड। कृत समाज नूं दिखाई देंदी है, विचार समाज नूं दिखाई नहीं देंदे। कृत कानून नूं दिखाई देंदी है, नीयत कानून नूं दिखाई नहीं देंदी। ऐसा मनुख संसार दे तल ते कबूल है, निरंकार दे तल ते काबले कबूल नहीं, परमात्मा नूं कबूल नहीं। साहिब ते साफ कहते पैन पखंड है। कर्म धर्म पाखंड जो दिसे तिन जम जागाती लूटे। हाफिज कहते ने, तस्बीह बदस्ते जाहिद चश्मे ब माले मरदम। हथ दे च तस्बीह है, मूंह दे च अल्लाह हो, अल्लाह हो, कृत ते बड़ी महान, कृत ते बड़ी ठीक। तस्बीह बदस्ते जाहिद चश्मे ब माले मरदम। ई काफिरे मुसलमा दीदम न दीदा बूदम। कहता काफर ते मैं बड़े देखे सन, मुसलमान काफर पहली दफा देखे। कुरान की तलावत करदे आया भी नीयत मैड़ी है, तस्बीह फैलदा होया भी भावना माड़ी है, नमाज पढ़दे आया भी विचार गंदे ने। कहता काफर बड़े देखे सन पर मुसलमान काफर पहली दफा देखे। तस्बीह बदस्ते जाहद चश्मे बमाल मरदम। ई काफिरे मुसलमा दीदम न दीदा बूदम। आगां चल के कहता है, सीमी बरी तो जाना दिल हम चो संगे खारा दर सीम संग पिनहा दीदम न दीदा बूदम। एक प्रमाण दिता है, उदाहरण। सीमी कहते ने चांदी नूं। चांदी निकलती है पहाड़ों दे चों, चिट्टी चांदी। कहता है मैं देखिया सी, पढ़िया सी, सुनिया सी कि पत्थरों दे चों चांदी निकलती है, पर कहता देख के हैरान होया, चांदी दे चों पत्थर पिया निकलता है, चिट्टे कपड़े, चिट्टा दाड़ा, फरिश्तियां वाला रूप, दिल पत्थर, कठोर, खुदाया। कन्न मुसल्ला सूफ गल, बाबा फरीद। कन्न मुसल्ला सूफ गल दिल का थी गुड़वात, ये बाहर दिसे चानना दिल अंधियारी रात। ये तो कर्म कृत दे तल ते चानना चानना है। मुसल्ला भी है, नमाज भी है, तस्बीह दा फेरना भी है। नीयत दे तल ते मसिया दी रात है, भावना दे तल ते अंधेरा ही अंधेरा है।